न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। आसनसोल नगर निगम में इस्तीफों की झड़ी, 3 पार्षदों ने छोड़ा पद, पार्टी नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। যখন অফিস আক্রান্ত হচ্ছিল তখন দলকে জানিয়ে কোনো রেসপন্স পাইনি। अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने पर सलानपुर वीडियो कार्यालय और रोटी बाटी ग्राम पंचायत कार्यालय में महिलाओं का प्रदर्शन, प्रशासन ने दिया आश्वासन। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूली का आरोप, दुर्गापुर में मजदूर यूनियन कार्यालय को लेकर बवाल। ड्यूटी के दौरान ठेका मजदूर की मौत, मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर फैक्ट्री में प्रदर्शन। आसनसोल नगर निगम में शुक्रवार को इस्तीफों का सिलसिला देखने को मिला। नगर निगम के वार्ड संख्या 78 के पार्षद अशोक रुद्र, वार्ड संख्या 72 के पार्षद चैतन्य माझी और वार्ड संख्या 84 के पार्षद देवाशीष सरकार ने अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें देवाशीष सरकार और चैतन्य माझी बोरो चेयरमैन भी थे। देवाशीष सरकार पहले ही बोरो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके थे, जबकि शुक्रवार को चैतन्य माझी ने पार्षद पद के साथ साथ बोरो चेयरमैन पद से भी इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद तीनों नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं पर हमलों जैसी घटनाओं के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया। इसी कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि भविष्य में वे किस राजनीतिक दल या दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस पर तीनों नेताओं ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। इनके इस्तीफे के बाद आसनसोल की राजनीति हलचल तेज हो गई है। কারণ দেখুন, 1 নম্বর কারণ হচ্ছে যে মস্তিষ্ক যদি না চায় তাহলে শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করতে পারে না। আর নম্বর 2, যে বিপুল ম্যান্ডেট দিয়ে একটা সরকার এসেছে, তারাই আগামী দিনে কি ডিসিশন নেবে সেটা তাদের ওপর ডিপেন্ড করছে। আমরা বাংলার জনসাধারণের ম্যান্ডেটকে সম্মান জানিয়ে আজকে রিজাইন করেছি এবং দিন 20-25 আগে আমাদের একটা মিটিংও হয়েছিল। সেখানে আমাদের মেয়র সাহেবও রিজাইন করতে চেয়েছিলেন আগেই, আমরাই তাকে মানা করি যে কিছুদিন দেখে নি পরিস্থিতি কি, কোন দিকে যায়, তারপরে সিদ্ধান্ত নেব। তো আজকে আমরা 3 জন, আরেকজন রিজাইন করেছে আপাতত এখন অবধি। আমরা কমিশনার সাহেবকে ইস্তফা দিয়েছি। আপনি বারবার বলছেন যে বিপুল ম্যান্ডেটের জন্য, তাহলে পুরো ভোটেও তো আপনারা বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে এসেছিলেন, সেটা কি পাবলিক ম্যান্ডেট ছিল না? সেটাও পাবলিক ম্যান্ডেট ছিল, কিন্তু এখন যেটা ব্যাপার হচ্ছে, এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ সরাসরি হচ্ছে। তো সেই হিসেবে আমাদের মনে হয় যে যারা সরকারের দায়িত্বে এসেছে তাদেরকেই আরও কাজের সুযোগটা দিয়ে দেওয়া উচিত। আপনারা কতজন এসেছেন আজকে? আপনি আমার সাথে তো আপাতত আমাকে, আমি অশোকদা, চৈতন্যদা, 2 জন বড় চেয়ারম্যানকে দেখতে পাচ্ছেন। একজন আগেই বড় চেয়ারম্যান থেকে ডক্টর দেবাশিস সরকার রিজাইন করেছিলেন, আজকে কাউন্সিলরশিপ থেকে উনি করলেন, এবং আরেক বড় চেয়ারম্যান কাউন্সিলর উনি করলেন। আমাকে আরেকজন শ্রাবণী বিশ্বাস বলেছে, ও করে চলে গেছে, উনি করে গেছেন। এবার দেখুন আরও কে কে আসছে। পদত্যাগ যে করলেন সেটা কি দলকে জানিয়েছেন? না, এবার বলি, ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যখন অফিস আক্রান্ত হচ্ছিল তখন দলকে জানিয়ে কোনো রেসপন্স পাইনি। এত কর্মী আক্রান্ত হচ্ছে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন খালি ফেসবুকেতেই বড় বড় কথা বলছেন, কেউ কর্মীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না। আমরা যে পদত্যাগ আজকে করছি
আমি সেটা এখানকার যিনি ইমিডিয়েট বস আমাদের পৌর নিগমের মেয়র সাহেবকে জানিয়েছি। তাহলে দলের প্রতি ক্ষোভ থেকেই কি পদত্যাগটা করলেন? না, আজকে সেটা বলার জায়গা নয়, সেটা নিয়ে কোনো একদিন কথা বলবো। তবে এটা তো নিশ্চিত ব্যাপার যে আমাদের মতো পুরনো কর্মীরা যে 2005 সাল থেকে পার্টির সাথে যুক্ত আছে, যারা আমরা 15 বছর সরকারে ছিলাম, তারপরে এই 2 মাসের মধ্যে যারা বড় বড় নেতা ছিলেন, বড় বড় দলের পদ পেয়েছিলেন, যারা পুরো মানে দল এবং সরকারের মাথায় বসেছিলেন, তাদেরকে কাউকেই কর্মীদের পাশে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি এটা একটা বেদনার জায়গা বলতে পারেন। আপনারা কি দলে থাকছেন? দলে তো আছি, আমরা তো কাউন্সিলরশিপ থেকে রিজাইন করি। কোন দলে? না, আমরা দেখুন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রত্যেকে শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু যেভাবে 2021 সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে পার্টির নিয়ন্ত্রণ চলে গেছিল। আপনারা চেনেন যে আমি একটা আন্দোলন করা ছেলে, সব সময় কখনো শিক্ষকদের জন্য আন্দোলন করি, কখনো কর্মপ্রার্থীদের জন্য করি। এবার পুরো ব্যাপারটা চলে যায় কর্পোরেট স্টাইলে এবং আইপ্যাকের কাছে এবং ক্যামাক স্ট্রিটের কাছে। তো এই প্যাটার্নে যদি পার্টি চলে, শুধু আমি নয়, যারা দলটাকে দলের মতো করতে চায়, এমনি বহু কর্মী যারা আছেন, তাদের কাছে কিন্তু এটা একটা প্রশ্ন চিহ্ন। দেখুন, দুটো জিনিস আছে, আমি আমার আগের চিঠিতেও মেনশন করেছি, এই চিঠিতেও মেনশন করেছি। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে যে ম্যান্ডেট এসছে সেটা একটা অন্য ম্যান্ডেট ফর এ চেঞ্জ, সেটা এবং ধরুন দ্বিতীয় কিছু সমস্যা আসছিল, যার জন্য আমার মনে হয় যখন সার্ভিস ঠিকমতো উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দি কনস্টিটিউশন আমি প্রোভাইড করতে পারছি না, দলে থাকার মানে পজিশনে থাকার কোনো দরকার নেই। কেন, আপনি তো সার্ভিস দেওয়ার জন্য কাউন্সিলরেটটা দেরি কেন করলাম, কেন অনেক মানুষের অনেক অসুবিধা হতো, যেহেতু স্কুলের সিজন চলছিল, কিছু সই সাবুদের ব্যাপার ছিল, তো সেটা পেরিয়ে গেছে, সেই জন্য আজকে পদত্যাগ করলাম। আচ্ছা, আপনারা কোন পান্থী? কালীঘাট পন্থী না? আমি এটুকুই বলতে পারি, এটা আপনি খুব যথাযথ প্রশ্ন করেছেন, কোন পন্থী বা কোন দলে আছেন, অত্যন্ত যথাযথ প্রশ্ন। কেন এটার উত্তর আমাদের অনেকের কাছেই এই মুহূর্তে নেই। যেমন আপনি প্রশ্নটা করছেন, কোনো রাগঢাক না করেই বলছি, আমার কাছেও নেই, কিন্তু আমি এটুকুই বলতে পারি যে দল টিকিট দিয়েছিল সেই দলের পন্থী। আমি ইস্তিফা দিলাম, আমি ইস্তিফা পাঠালাম মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পল, পাঠালাম মেয়র আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিধান উপাধ্যায়, কমিশনার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, সেক্রেটারি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং চেয়ারম্যান আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। ডেমোক্রেসি আছে, সবার নিজের নিজের ইচ্ছা, সবার মনের তো আমরা করতে পারবো না। যারা যে অসুবিধা আছে বা পারছে না, যেটা হয়েছে বা মানুষের যে রায় হয়েছে ভোটের বিধানসভাতে, সব মানে চিন্তা ভাবনা করে সে নিজের নিজের জায়গা থেকে পদত্যাগ করছে। আপনাদের সেদিন মিটিং হয়েছিল, কি এই সিদ্ধান্তই হয়েছিল? না, ওটা তো আমাদের মিটিংয়ে কাজ করার নিয়ে আলোচনা ছিল। ঠিক আছে, আপনি যে ডেপুটি মেয়র সামলাচ্ছেন, তারপরে এই বর্ষাকাল আসছে, এই যে দিকে আমরা যতটা সাহায্য পাবো, আমরা যতটা পারবো করবো, যেমন করা যায় কাজটা। দিকে দিকে যে পদত্যাগ করছে, তারপরে বর্ষাকালে সমস্যা কি হবে? সময় অপেক্ষা থাকুন, সময় অপেক্ষা দেখুন। राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना के दूसरे चरण के तहत 1 जुलाई से पात्र महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता भेजने की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची। इसे लेकर शुक्रवार सुबह सलानपुर वीडियो कार्यालय में सैकड़ों महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि 1 जुलाई तक योजना की पहली किस्त उनके बैंक के खाते में आ जाएगी, लेकिन अब तक राशि नहीं मिलने से वे परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि वे पंचायत से लेकर वीडियो कार्यालय तक लगातार चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। स्थिति को देखते हुए सलानपुर के वीडियो देवांजन विश्वास स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी महिलाओं से बातचीत कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को चरणबद्ध तरीके से जाँच की जा रही है और सत्यापन पूरा होने के बाद ही खातों में राशि भेजी जाएगी। प्रशासन के अनुसार सलानपुर ब्लॉक में अब तक 12,000 से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ
मिल चुका है, जबकि पहले लक्ष्मी भंडार योजना के तहत करीब 30,000 महिलाएं लाभान्वित होती थी। अनुमान है कि अन्नपूर्णा योजना के लिए ब्लॉक में लगभग 20,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पंचायतों में लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची भी जारी कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिनका नाम अभी सूची में नहीं आया है वे दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यदि किसी का ऑफलाइन आवेदन पहले से दर्ज है तो पोर्टल नया आवेदन स्वीकार नहीं करेगा, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति समझ सकेंगे। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 8282082820 जारी किया है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि अगस्त तक निर्धारित है और सभी आवेदकों को जांच पूरी होने के बावजूद योग्य लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस बार योजना का लाभ केवल वास्तविक आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवार के महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। ऐसे में सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कुछ आवेदनों के निरस्त होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि बाकी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ कब तक मिल पाता है। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म फिलअप किए थे ऑनलाइन, उसी के बारे में पूछ रहे थे। तो अभी क्या मिला आगे? अभी कुछ मिला नहीं, सिर्फ आधार नंबर और फ़ोन नंबर लिख दिया है, कुछ बोले नहीं है तब होगा। चित्ररंजन के लिए बोलो। चित्ररंजन के लिए बोले थे SDO ऑफिस ना, SDO ऑफिस। यहाँ पे चित्ररंजन से का नहीं मिलेगा बोल रहा है। चित्ररंजन का एंट्री यहाँ पे नहीं होगा बोल रहा है, दूसरे जगह से कहीं से लेना पड़ेगा। SDO ऑफिस। अच्छा, SDO ऑफिस। SDO ऑफिस से होगा। अच्छा, यहाँ से नहीं होगा? यहाँ से होगा कि नहीं होगा नहीं बोला, यहाँ से पास नहीं करेगा बोल रहा है, वहाँ से पास करेगा। तो चित्ररंजन तो इस्लामपुर ब्लॉक में से पहले में आता है, वहाँ बोला कि यहाँ से नहीं, डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। পেয়েছি অনেকে পাইনি, তার জন্য এসেছিলাম তো ভিডিওর কাছে। তো আমরা জিজ্ঞাসাও করলাম যে আমাদের টাকা আগে মাসে ঢুকেছে, এ মাসে কেন ঢোকেনি? বললো এ মাসে টাকা ঢুকবে না, আগে মাসে টাকা ঢুকবে। কিন্তু আমরা কি করে জানবো যে আমাদের কি ভুল ত্রুটি আছে বা কিছু? সেটা তো ওদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে, ওরা দেখিয়ে দেয়নি, ওরা কিছু বললো না। অনলাইন করছে, আমরা অনলাইনে কেন টাকা দিতে যাব? আমরা যখন অফলাইন করেছি, অনেক তো গরিব আছে, অনেকে পেয়েছে অনেকে পায়নি, সবাইকে তো একই রকম দেওয়া উচিত সরকারের তরফ থেকে। আর দেবে না তো সরকারি টাকা কাউকে যেন না দেওয়া হয়, বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म भरने के बावजूद बैंक खाते में राशि नहीं आने से नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को आसनसोल के रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत रोटी बाटी ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रोटी बाटी, चपुई समेत आसपास के कई क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि जून महीने में उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया था। कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया, जबकि पंचायत की ओर से आश्वासन दिया गया था कि दोबारा आवेदन की ज़रूरत नहीं है और राशि सीधे खाते में आ जाएगी। वहीं कई महिलाओं ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने के बावजूद अब तक योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। राशि नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने पंचायत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जिससे कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रानीगंज थाना की निमचा पुलिस चौकी पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल महिलाओं ने जल्द से जल्द योजना की राशि जारी करने और मामले का समाधान करने की मांग की है। কিসের টাকা? এই অন্নপূর্ণা ভান্ডারের যোজনার টাকা। আবার প্রকৃতপক্ষে যারা প্রকৃত গরিব তারা একটা টাকাও পাচ্ছে না, তাদের কোনো ভেরিফিকেশনও নেই। কিন্তু যারা বড় লোক, যাদের প্রচুর আছে, তাদের বাড়িতে কিন্তু অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকে গেছে। এরই প্রতিবাদে যারা গরিব মানুষ সত্যি প্রকৃত গরিব কাঁদছে আজকে দেখুন, তারা টাকা একটাও পায়নি, তারা কিচ্ছু জানে না, তারা লেখাপড়াও জানে না, অনলাইনে ফর্ম ফিল আপও করতে পারবে না। তাহলে তাদের কী হবে? সেইগুলোর আজ বিচার। আমার মেয়ে গেল ব্যাংকে, তো 3-4 বার করে ঘুরে আসছে, 3-4 বার করে ঘুরে আসছে, তোমার টাকা ঢুকে নেই। তো দুবারে কি ঢুকে নেই? দুবারে গেল আমরা গরিব মানুষ, আমরা সিভিল কাস্টে অফলাইনে
ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম। 2 তারিখের পরে আমি 10 তারিখে আবার এসেছিলাম পঞ্চায়েত অফিসে। পঞ্চায়েত অফিসে যেখানে যে ম্যাডামকে ওনাকে আমি বললাম যে 2 তারিখে অফলাইনে করেছে, আমাদের কি আর অনলাইনে করার দরকার আছে? উনি কিন্তু ডাইরেক্ট আমাদের বললেন যে কোনো দরকার নেই, আপনারা ঠিক টাকা পেয়েছেন। 2 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত আমাদের কোনো টাকা ঢোকেনি। যখন আমরা অনলাইনে করতে গেলাম তখন 30 তারিখ আমাদের সাবমিট আসছে। তাহলে 1 মাস আমাদের ফর্ম কেন এখানে পড়ে থাকবে? আমাদের ফর্ম এগুলো তো ওদের গাফিলতি, আমাদের তো কোনো গাফিলতি না। আমাদের এই 1 মাস যে আমরা টাকাগুলো পেলাম না, এটা কে দায়টা নেবেন বলুন? নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता, नई दिल्ली, NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने के आरोप को लेकर शुक्रवार को दुर्गापुर स्टील प्लांट मजदूर यूनियन के कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं और पीड़ित लोगों ने यूनियन कार्यालय पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से नौकरी का झांसा देकर कई लोगों से रुपये लिए गए, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। इसी के विरोध में लोगों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल समर्थित श्रमिक संगठन के कुछ लोग नौकरी का लालच देकर अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे। पार्टी ने
ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। এই অফিসটাতে দিনের পর দিন বান্টি সিং, জয়ন্ত রক্ষী মানে সাধারণ মানুষকে চাকরি দেবে বলে দিনের পর দিন অনেক টাকা পয়সা নিয়েছে। টাকা পয়সা নিয়ে ওনাদেরকে চাকরি তো দেয়নি, এখন আরও তাদেরকে কি করছে, যারা প্লান্টে কাজ করতো তাদেরকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমাদের একটাই দাবি, যারা চাকরি পয়সা নিয়েছে, পয়সা নিয়ে তাদের কাছে যে চাকরি দেওয়া হয়নি, আমরা চাইছি তারা কাজ করুক, আর নয়তো তাদের টাকা পয়সা ফেরত দেওয়া হোক। কেন এই জিনিসটা করেছে? আজকে আপনারা কি এটা কি দখলে নিলেন নাকি? অবশ্যই নিয়েছি, কেননা এখানে দিনের পর দিন দুর্নীতি হবে, চলবে, মানুষকে প্রলোভন দেখাবে, দেখিয়ে টাকা পয়সা নেবে, এটা হতে দেওয়া যাবে। আমরা যোগাযোগ করলাম এবং জানতে যেটা পারলাম যে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী বা ক্যাডার তারা এই অফিসের ভিতর ঢুকে, তালা ভেঙে ঢুকে চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তারা কিছুগুলো ধরে নিতে হবে। এবং শুনলাম যেটা, যে সেখানকার জিনিসপত্র সমস্ত ভাঙচুর করে সেখানে যে সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র আছে সেগুলো তারা চুরি করে নিয়ে গেছে। তো বিজেপির এই চুরি করা আর বিজেপি, এটা তো সমার্থক শব্দ, এটাতে কোনো দ্বিমত আমার নেই। কারণ যারা দিল্লিতে আপনারা দেখতে পেয়েছেন 605 কোটি টাকা চুরি হয়েছে, ওই বিজেপির নেতৃত্বেই হচ্ছে। এখানে আমাদের অফিসগুলো ভাঙচুর এবং এখন চুরিতে নেমে পড়েছে। এই হচ্ছে আজকের বাংলার নতুন পরিবর্তনের সরকার, যেটা বলেছিল ভয় আউট ভরসাহীন, সেটার উল্টো হয়েছে। সারা বাংলায় এখন শুধু ভয়। जमीन के बदले नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं किए जाने के आरोप में शुक्रवार को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ईसीएल के सोनपुर बाजारी एरिया कार्यालय के मुख्य गेट के सामने करीब 42 भूदाताओं और उनके परिजनों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करीब 5 वर्ष पहले ईसीएल ने उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया था। उस समय ज़मीन के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक अधिग्रहित जमीन पर कोयला उत्पादन शुरू होने के बावजूद आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। भूदाताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए, लेकिन समाधान के बजाय हर बार नए दस्तावेज मांगे गए और केवल परेशान किया गया। लंबे इंतजार के बाद भी ना तो कोई लिखित आश्वासन मिला और ना ही नियुक्ति की कोई समय सीमा तय की गई, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। धरने में शामिल भूदाता मिलन घोष ने कहा कि अब केवल जमीन देने वाले ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। আজ আমরা গত 5 বছরের অধিক দিন ধরে এখানে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ফাইলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। হ্যাঁ, তাতে আমাদের এখনও পর্যন্ত কোনো রকম আমাদের সুরাহা দেয়নি। ইসিএল প্রতিদিন আমাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পড়ে আজ আমাদের 5 বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে, এখনও আমাদের চাকরি দেওয়া হয়নি। ইসিএল শুধু প্রত্যেকদিন নতুন নতুন নিয়ম তৈরি করছে এবং আমাদের করতে বলছে, এবং এই জন্য আমাদেরকে শুধু হেনস্থা করতে হচ্ছে। আমরা ইসিএলের কাছে দাবি রাখবো যে আমাদের তাড়াতাড়ি অতি শীঘ্রই আমাদের যাতে চাকরি দেওয়া হয় এবং নিয়োগপত্র আমাদের হাতে প্রদান করা হয়। এর আগেও তো আপনাদেরকে ধর্ণা বলতে দেখা গেছে। হ্যাঁ, তো এটা আমাদের শুধু ইসিএল কর্তৃপক্ষ শুধু আমাদের কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ওদের শুধু এটা কাজ। আমাদের যারা এমপ্লয়মেন্ট ফাইল যারা এখানে অ্যাপ্লাই করেছে তারা যদি এখানে আসে, শুধু এদিকে মাইন্ড ফ্রেশ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং শুধু বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এদের এমপ্লয়মেন্ট এখনও চাকরিটা দেওয়া হচ্ছে না। दुर्गापुर के कोकोवन थाना क्षेत्र स्थित डीपीएल प्रशासनिक भवन के समीप एक निजी कारखाने में ड्यूटी के दौरान एक ठेका मजदूर की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में तनाव फैल गया और मृतक के परिजनों व स्थानीय लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी देने की मांग की। सूचना मिलते ही कोकोवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि परिजनों के साथ बातचीत जारी है और मामले के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि ठेका मजदूरों से बिना ईएसआई जैसी आवश्यक सरकारी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए काम कैसे कराया जा रहा था। मामले को लेकर श्रमिकों में नाराजगी है और उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। আমাদের মাং আছে, যেমনি ধরে নাও প্লান্টে যেতে কাজ করছে এবার কাজ করতে করতে ডেথ হয়েছে,
তাহলে ডেথে যে কম্পনসেশনটা থাকে 13,75,000 টাকা, সেটা আছে আমাদের ডিমান্ড। এবার যদি এই জিনিসটা যদি প্ল্যান না করতে পারে, তাহলে যে ওয়ার্কার আছে ওর ফ্যামিলি আছে, ওর ফ্যামিলিটা খাবে কি? তারপর ওনার মেয়ে আছে 22 বছর এজ, ওর বিয়ে, এইসব কে দেখবে? আমাদের এইটাই ডিমান্ড হচ্ছে যে যা কম্পনসেশনটা হয় সেটা প্ল্যান্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করবে, নাহলে প্ল্যান্টে আমরা কাজ होते देवो ना। नहीं, अभी बात चल रहा है, जब फाइनल डिसीजन आएगा हम लोग बताएंगे। काम हुआ क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का आदमी था, वो बैठा हुआ था, उस फेंट हो गया। फेंट होने के बाद फिर तुरंत हॉस्पिटल लेके गया, तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला डेथ हो गया। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन अप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट, तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट, जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल, तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर, जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग।
पश्चिम बंगाल आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को आसनसोल के एसबी गोराई रोड स्थित सुकांत मैदान के पास जिला विद्यालय निरीक्षक डीआई कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के नेता स्वरूप पान ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से सरकारी स्कूल में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। उनकी मुख्य मांगों में कंप्यूटर शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति, कंप्यूटर शिक्षा को नियमित पाठ्यक्रम सिलेबस में शामिल करना तथा समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आज समय में कंप्यूटर शिक्षा हर विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अब तक इसे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं मिला है। वहीं सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों को मात्र 16,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है, जो अन्य विषयों के शिक्षकों की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि उनका कार्यभार भी समान है। स्वरूप पान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है। दुर्गापुर के नमो सागरबंगा इलाके स्थित एक निजी इस्पात स्टील कारखाने के गेट नंबर 4 के सामने शुक्रवार को स्थानीय लोगों और भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए गेट जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन स्थानीय युवाओं की अनदेखी कर बाहरी लोगों को नौकरी दे रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि फैक्ट्री के लिए स्थानीय लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और वर्षों से क्षेत्र के लोग प्रदूषण के मार भी झेल रहे हैं। इसके बावजूद रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इसी के विरोध में गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के कारण शुक्रवार सुबह से ही फैक्ट्री के गेट नंबर 4 के आसपास तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोकोवेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी। इस मुद्दे पर भाजपा के दुर्गापुर पश्चिम 3 मंडल अध्यक्ष तेज नारायण पांडे ने भी फैक्ट्री प्रबंधन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित कर बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम।